everyone. Myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 3. Subject is SS. We are discussing chapter number 8, Egypt. And this is my session number 2 for this chapter. So kids, what did we learn in our previous session? Session 1 में हमने क्या सीखा था? Recap. Okay, in session number 1, we learned the introduction part of this chapter. That is, how did this civilization start? Because of farming. Early human beings started farming, that is growing crops for himself, by himself. He started to live in a settled life. When some people, group of people started living together, slowly and gradually, villages started. And then when these villages grew, it became a civilization. So that was the introduction part. There were many civilizations, but all the civilizations, they grew or they developed near the rivers. रिवर्स के आसपास ही सिविलाइजेशंस ग्रो होते थे. क्यों? क्योंकि रिवर्स में से जो पानी मिलता था उन्हीं से उनके क्रॉप्स ग्रो होते थे. सो दिस सिविलाइजेशन डेवलप्ड or grew near the rivers. Next, Bronze Age. When these civilizations started, civilization में रहना जैसे ही लोगों ने स्टार्ट किया तो एज भी चेंज हो गई. जब अर्ली मैन, when he was hunter and gatherer, that time it was called stone age. उस टाइम को stone age कहा जाता है. But bronze age का मतलब है कि इन दिस टाइम, ब्रॉन्ज एज ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें मैन स्टार्टेड यूजिंग ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज इज अ मेटल. ब्रॉन्ज एक मेटल है जिसको यूज करके मैन स्टार्टेड मेकिंग हिज वेपन्स एंड टूल्स. ब्रॉन्ज इज अ मेटल. इट इज मेड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन टुगेदर. कॉपर और टिन दो अलग मेटल्स को इकट्ठा करके ब्रॉन्ज नाम का मेटल बनाया जाता है. सो इन दिस एज men started using bronze weapons and tools, so it is called bronze age civilization also. Then 4 civilizations of bronze age. अब इस bronze age में 4 अलग अलग civilizations थी. Which were they? Okay, first one, as we did, we studied in our earlier session. First one was the Mesopotamian civilization, which was developed near river Tigris and Euphrates. Second one, the Egyptian civilization, which grew near the river Nile. Then the Harappan civilization, which was grown or which was developed near river Indus. And fourth one, the Chinese civilization, which developed near river Huanghe. So these were the 4 different civilizations of Bronze Age. Now, as the chapter name reveals, the Egypt, we are going to study about the Egyptian civilization in detail in this chapter. इस chapter में Egyptian civilization के बारे में हम detail study करेंगे. So what is Egyptian civilization? First thing. In this chapter, we will study the Egyptian civilization which existed about 5000 years ago. 5000 years के पहले, मतलब आज से करीबन 5000 साल पहले Egyptian civilization था. Now, the main sources of information of Egyptian civilization are the remains of the buildings. अब Egyptian civilization के बारे में हमें कहां से पता चलेगा? That is the remains of the buildings. मतलब कि जो buildings, पुराने buildings थे, वो आज तो टूट फूट गए होंगे. They might have got destroyed, correct? बट उसमें कुछ पार्ट तो बचा हुआ होगा ना, टूटे फूटे कुछ हिस्से होंगे. So the remains of the buildings. Then the objects used by the people. उस जमाने के people कौन कौन से objects यूज करते थे, कौन कौन सी चीजें यूज करते थे, ये सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी. Then the written records they left behind. और उन्होंने जो उस टाइम के इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लोग हैं, उन्होंने कुछ रिटन रिकॉर्ड्स अगर छोड़े हैं तो उससे भी हमें
इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कौन कौन सी चीज है? फर्स्ट थिंग, द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स, सेकेंड द ऑब्जेक्ट्स that were used by the people, and thirdly the written records which are left behind। तो इन तीन चीजों से हमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में, वहां पर लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे कहां पर था ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन और क्या काम करते थे, ये सारी इंफॉर्मेशन इन चीजों से हमें मिलती है ना। फर्स्ट थिंग, द लोकेशन, कहां पर था ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन? ओके, द इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर नाइल। फ्लरिश्ड मतलब वो कहां पर ग्रो हुआ? अलोंग द बैंक ऑफ रिवर नाइल। रिवर नाइल जो है उसके बैंक्स, बैंक्स मतलब रिवर के आसपास की जो जमीन होती है उसे बैंक कहा जाता है। मतलब नदी का जो तट है, करेक्ट, नदी का किनारा, उसे बैंक कहते हैं। बैंक मतलब ये बैंक नहीं है जहां पर आप जाके पैसे डिपॉजिट करते हो। बैंक मतलब नदी का किनारा। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लरिश नियर द बैंक ऑफ रिवर नाइल। कौन सी रिवर? रिवर नाइल। इजिप्ट is called the gift of Nile because without this river it would have been a barren desert। barren desert means lifeless। इजिप्ट को ये नाइल रिवर का गिफ्ट माना जाता है, क्योंकि अगर रिवर नाइल वहां पर नहीं होती तो वहां पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती। नो प्लांट्स, नो एनिमल्स, नो ह्यूमन बींग्स कुड हैव बीन सर्वाइव्ड देयर। उधर सर्वाइव करना इम्पॉसिबल था अगर रिवर नाइल नहीं होती तो। सो दैट इज व्हाई इजिप्ट इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द नाइल। गिफ्ट ऑफ द नाइल माना जाता है इजिप्ट को, क्योंकि इजिप्ट जो है वो रिवर नाइल की वजह से ही बना है। अगर रिवर नाइल नहीं होती देन इट वुड हैव बीन अ बैरन डेजर्ट। बैरन डेजर्ट मीन्स लाइफलेस डेजर्ट। Next, the river made Egypt fertile and provided enough water for crops। So, रिवर नाइल ने वहां की जमीन को फर्टाइल बनाया। फर्टाइल कैसे बनती है कोई भी जमीन? जब उसे प्रॉपर वाटर मिले। So, this river Nile made Egypt fertile। The land was fertile, land became fertile because of river Nile and provided water for the crops। और वहां पर जो लोग रहते थे और जो क्रॉप्स ग्रो करते थे उन क्रॉप्स के लिए पानी प्रोवाइड करने का काम करता था ये रिवर नाइल। द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन वेर थीब्स, गीजा एंड मेम्फिस। कौन कौन से थे इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन? दे वर द थीब्स, गीजा एंड मेम्फिस। ये तीन इंपॉर्टेंट सिटीज थे इजिप्शियन सिविलाइजेशन के। लर्न द प्रोनाउंसिएशन। आई नो दे आर न्यू टू यू, बट एज यू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, एज यू प्रैक्टिस रीडिंग देम, you will understand how to pronunciate them। So the important cities of Egyptian civilization were Thebes, Giza and Memphis। Now let us learn regarding the people there। वहां पर लोग कैसे रहते थे, क्या काम करते थे। So all these things we will learn। In Egypt, the king was called the pharaoh। इजिप्ट में जो किंग होता है, हम जिसे राजा कहते हैं, उसे इजिप्ट में फेरो कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरो। लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन करेक्टली एंड ट्राई टू प्रोनाउंसिएट इट। फेरो। The king was called the pharaoh। The people respected him and even worshipped him as God। People, वहां पर जो लोग रहते थे वो अपने किंग, अपने फेरो की रिस्पेक्ट करते थे। रिस्पेक्ट मतलब आदर करना। एंड ऑल्सो वर्शिप्ड हिम। सम ऑफ देम एज वी वर्शिप गॉड। हम भगवान की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह कुछ लोग वहां अपने राजा, अपने फेरो की भी पूजा करते थे। दे वर्शिप्ड हिम। उनकी पूजा करते थे। वर्शिप मतलब पूजा करना।
The Pharaoh was responsible for the happiness of his people. Pharaoh जो राजा है वो अपने प्रजा मतलब पीपल की हैप्पीनेस के लिए रीजन है. If the Pharaoh is good, then the people living in his kingdom will also be good. If the Pharaoh is evil, अगर वो Pharaoh अच्छा नहीं है तो वहां के लोग भी अच्छे होंगे नहीं. क्यों? क्योंकि Pharaoh अगर उन्हें तकलीफ देगा तो लोग खुश रहेंगे नहीं. So if the Pharaoh is good, then the people will also be good. So the Pharaoh was responsible for the happiness of his people. Pharaoh ही जवाबदार है अपने people की happiness के लिए. किंग अगर चाहे तो अपने people को, अपने subjects को या अपने प्रजा को खुश भी रख सकता है, और अगर किंग अच्छा नहीं है तो उसकी प्रजा दुखी भी हो जाती है. Some of the important pharaohs were, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेरोज थे, मतलब राजा कौन कौन से थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे. They were Khufu, listen to the pronunciation, Khufu, then Akhenaten, then Ramesses II and Tutankhamun. Once again I am repeating, Khufu, ये सारे फेरोज के नाम हैं, इंपॉर्टेंट फेरोज. Khufu, Akhenaten, Ramesses II and the Tutankhamun. These were the important pharaohs. Of the Egyptian civilization. Now, most of the people were farmers. Egyptian civilization में जो लोग रहते थे उनमें ज्यादातर लोग farmers थे. Farmer means one who grow crops. जो crops को grow करते हैं उसे farmer कहते हैं. क्योंकि ये रिवर नाइल के आजू बाजू में फ्लरिश हुआ था इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तो लैंड भी फर्टाइल थी, पानी भी मिल जाता था. दैट इज वाई मोस्ट ऑफ देम वेर फार्मर्स. इसीलिए ज्यादातर लोग फार्मिंग का ही काम करते थे. सो मोस्ट ऑफ देम वेर फार्मर्स. देयर वेर ऑल्सो स्क्राइब्स और राइटर्स हु केप्ट ऑल द रिटन रिकॉर्ड्स. उनमें कुछ लोग स्क्राइब्स भी थे. स्क्राइब्स, लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन, स्क्राइब्स. और राइटर्स, स्क्राइब्स मतलब राइटर्स, हु केप्ट ऑल द रिटन रिकॉर्ड्स. स्क्राइब्स जो है वो अपने किंगडम के सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे. पूरे रिटन रिकॉर्ड्स रहते थे उनके पास कि क्या कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया. ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का काम कौन करता था? स्क्राइब्स. देयर वेर प्रीस्ट्स. प्रीस्ट मतलब पुजारी. प्रीस्ट्स, सोल्जर्स, इंजीनियर्स एंड ट्रेडर्स. प्रीस्ट मतलब पुजारी, ट्रेडर्स, नेक्स्ट इज सोल्जर्स. सोल्जर्स मतलब सैनिक. देन इंजीनियर्स, क्योंकि इजिप्शियन सिविलाइजेशन एज वी स्टडीड अर्लियर, बिग बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड, देन वेल प्लान्ड रोड्स वर देयर, तो उसके लिए इंजीनियर की जरूरत है, तो कुछ लोग इंजीनियर्स भी थी. एंड लास्टली ट्रेडर्स मीन्स दे यूज टू बाय एंड सेल गुड्स. सामान बेचने वाले, खरीदने वाले. सो ऑल दीज पीपल लिव देयर. देयर वेर मेनी स्किल्ड आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्स पीपल एज वेल. बहुत सारे आर्टिस्ट भी थे जिनको पेंटिंग, गाना बजाना, ये सारी की सारी चीजें भी आती थी. एंड क्राफ्ट पीपल या क्राफ्ट पर्सन मतलब कोई ना कोई क्राफ्ट की आइटम बनाने वाले, वुड से कुछ ना कुछ आइटम बनाने वाले, या फिर वूल से बनाते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स वेर ऑल्सो डेवलप्ड एट दैट टाइम. द पीपल बिलीव्ड इन मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस. तब के जमाने में बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस. गॉड जो मेल है तो गॉड कहते हैं, फीमेल है तो गॉडेस कहते हैं, और गॉडेस का प्लूरल फॉर्म है गॉडेसेस. माता जी जो हम बोलते हैं ना, वो बहुत सारे हैं तो गॉडेसेस. सो बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस को मानते थे ये लोग.
So in today's session we learned regarding the Egyptian civilization, then the location of Egyptian civilization. So Egyptian civilization, it was flourished around 5000 years ago. And where was it flourished? कहाँ पर था? It was on the bank of river Nile. It flourished on the bank of river Nile. Then Egypt. इजिप्ट जो है, जहां पर इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लरिश हुआ, उस प्लेस को इजिप्ट कहते हैं. इजिप्ट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ द नाइल. गिफ्ट ऑफ द नाइल इज कॉल्ड इजिप्ट. देन क्यों ऐसा गिफ्ट ऑफ नाइल बोला जाता है? बिकॉज इफ रिवर नाइल वॉज नॉट देयर, देन इट वुड हैव बीन अ बैरन लैंड. बैरन लैंड मतलब लाइफलेस लैंड या लाइफलेस डेजर्ट होता अगर वहां रिवर नाइल नहीं होती तो. देन वी ऑल्सो लर्न इन द लोकेशन पोर्शन. लोकेशन के बारे में अब जब हमने सीखा तब हमने यहाँ के इम्पोर्टेंट सिटीज को भी वी ऑल्सो लर्न अबाउट इम्पोर्टेंट सिटीज, दैट इज द थीबस, गीजा एंड मेम्फिस. थीबस, गीजा एंड मेम्फिस ये इम्पोर्टेंट सिटीज थे इजिप्शियन सिविलाइजेशन के. देन रिगार्डिंग द पीपल के बारे में हमने क्या सीखा इस सेशन में? द किंग वॉज कॉल्ड द फेरो. किंग को फेरो बोलते थे. पीपल यूज टू रिस्पेक्ट देयर किंग और देयर फेरो एंड समटाइम्स इवन वर्शिप द फेरो. फेरो की वर्शिप भी की जाती थी, पूजा भी की जाती थी. देन इंपॉर्टेंट फेरोज कौन कौन से थे? दैट वेर खुफू, आकेनातन, then Ramesses II and Tutankhamun. Which were they? Khufu, Akhenaten, Ramesses II and Tutankhamun. These were the important pharaohs. Then, what did people do at that time? Mainly, people were farmers. But some people were scribes, means they were writers who wrote the records. Then, some of them were priests, मतलब पुजारी, soldiers, सैनिक, engineers and traders, जो बिजनेस करते थे, बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स का, ये लोग भी थे. Some people were also crafts people and artists. क्राफ्ट पीपल और आर्टिस्ट भी थे कुछ लोग. Then people believed in many gods and goddesses. So all these things we learned in this session. But regarding Egyptian civilization, we still have to learn regarding the buildings and the writings. Egyptian civilization के buildings और writings के बारे में भी अभी हमें आगे next session में we will learn about them. But for now, in this session, I will end this session to these 2 points, that is location of the Egyptian civilization and the people of the Egyptian civilization. So, I want you all to go through the textbook, read the chapter, read the correct pronunciation of new words or the difficult words that you come along this chapter. You can go through the video to listen to the pronunciation correctly. Video के through आप pronunciation correctly सुनिएगा and try to pronunciate yourself. I'm sending a PDF along with this video, in which I have asked you the fill in the blanks related to today's session. आज के सेशन के बारे में जो भी मैंने आज के सेशन में आपको एक्सप्लेन किया, उसके बारे में मैंने फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूछे हैं इस पीडीएफ में. फाइंड द आंसर्स बाय लुकिंग इनटू द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में से आपको आंसर्स मिल जाएंगे. अदरवाइज यू कैन गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन. अगर आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं टेक्स्ट बुक में तो एक बार फिर से वीडियोस को रिवाइंड करके देखिए. यू कैन डिस्कस द आंसर विद योर पेरेंट्स और फ्रेंड्स. आप डिस्कस करके भी आंसर लिख सकते हो. एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर स्टिल हैविंग प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी. बट डू योर वर्क टाइम टू टाइम. टाइम टू टाइम आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिएगा. ओके. एंड I want you all to read this chapter. इस चैप्टर को प्लीज रीड कीजिएगा, properly, thoroughly read कीजिएगा. There are many new words which it is difficult for you to pronounce. I understand,
बट इफ यू गो थ्रू द वीडियो एंड लिसन टू द वीडियो करेक्टली, आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस मिल जाएंगे। जैसे कि नेम्स ऑफ द सिटीज थे, फेरोज के नेम्स थे, ये सारे के सारे न्यू वर्ड्स है आपके लिए। तो इनको कैसे प्रोनाउंस करना है वो आप वीडियो के थ्रू आप रिवाइंड करके सीख सकते हो। सो अगर आप वो सीख गए तो आपके लिए इस चैप्टर को पढ़ना, रिमेम्बर करना, याद रखना इजी हो जाएगा। सो आई वॉन्ट यू ऑल to read the chapter thoroughly. Okay, bye for now.